All right. So we'll start the session. So primarily, see, first things first, let's talk about economics, right? So economics may, what kind of questions are being asked? See, there are two or three themes on, obviously based on the syllabus portion. Number one is that they ask you about particular issue like ease of doing business, infrastructure, banking issue, why a particular sector is not growing, what are the issues in power, uh, railways, etc., etc. Then there are certain key themes like agriculture, right? Agriculture is prominently one of the more important themes. Then some government schemes may be asked. Then they may talk about financing the projects. There are certain topics which are not listed, but they get asked every year, right? So these are the key themes basically. And one of the most, like I would say, cardinal mistake that we perform is that we tend to read all these things in silos. What do I mean by silos? Suppose you're reading infrastructure, so you'll be reading, say, ports first, then aviation sector, then railways, then probably if you want to switch over, you would read about these ease of doing business. Suppose there's a topic there, and why banking sector is failing. Although banking sector is not directly there in your syllabus, but again, we like to read about it. Then sometimes we read about the budget, since budget would be news, some things from economic survey. So what my suggestion is, if you keep on uh, noting down the important points that I'm going to tell you, probably you'll be able to address the questions, almost all the questions holistically, and you will be able to write almost like better answers compared to other guys, right? So first things first, let's talk about the structure we have to think of while writing an answer based on a macroeconomic question. So there are three things. Generally, if someone asks you what are the issues that our infrastructure sector is facing, or say agriculture is facing, or things like that. Any question that you may want to ask, you can post it in my personal chat group, and I'll be discussing that. And we'll see how we can answer that without knowing much, right? That is again a good thing to begin with. Now, so right, suppose let's pick this year's paper as well. Let's first open this year's question paper, GS3, and randomly I'll be picking one question and then we'll see what can be done. So the first question was very simple. Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard. So, right, it's one of the more simpler questions. You just wanted to so basically structure. We'll see what can be used here. Second question was, what is the status of digitalization in the Indian economy? Very factual in nature, and if you know three or four facts, I think you'll be able to do justice to this question, right? And if you see directly, questions are being picked from your syllabus portion. Third question is, how does e-technology help farmers in production marketing? So that is again a very specific bullet in your syllabus, which reads role of e-technology for farmers, right? Concept of AI. So that is from again from your science and tech portion, and then state the objectives and measures of the land reforms in our country. So again, very simple questions are being asked. Probably, if you utilize my structures, you'll be able to write well. Let's discuss this. So number one, what are the key themes? You have to think along these lines. Now, keep noting down, and I won't repeat it. Economic. Number one is main structure is economic. Second is governance, and third related to others. Right. So if someone asks you what are the challenges in any particular sector, or if someone asks you what is the way forward, what are the steps that need to be taken, etc., we can probably utilize the structure. Right. So under economic heading, so I've discussed three subheadings. Number one is economic, number two is governance, and number three is other factors, right? And I would want this class to be more democratic in nature. So please raise your hands or whatever, and if you want to say something or contribute to the class, etc., that's always welcome. All right. So under economic heading, just keep writing these factors. So forex, number one is forex, foreign exchange. Number two is investment and trade.
Number three is industry. Number four is banking. Number five is tax issues, right? So suppose someone asks you what are the issues that MSMEs are facing, right? So out of all these factors, you can pick investment. There is lack of investment in MSMEs. Number two, that industrial reforms are needed, labor reforms, etc., etc. Rather, labor reforms we'll be covering in the governance wala part. Then banking, so access to credit, especially to micro, small, and medium enterprises, is an issue. Then tax reforms. So tax reforms means that MSMEs face problems in filing tax returns, right? Handholding support is not there, right? Okay. Then let's talk about governance. What all things come under governance? Basically, tax administration. Number two, you can write, and please let me know if I'm going a bit fast, right? All right. Okay, so Shekhar is saying that. सर हिंदी में भी बताइए तो हिंदी में all these points I'm not like I'm not prepared these points in Hindi but जितना हो सकेगा I'll try to speak and probably you can translate that. तो गवर्नेंस के पार्ट में आप आ सकते हैं टैक्स रिलेटेड इश्यूज. नंबर टू इज रेड टेपिज्म. इसको हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही. ठीक है. लाल फीताशाही क्या मतलब? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, rent seeking attitude, etc. You must have studied it in governance or in ethics. Again, I'll be taking more classes of the set topics, right? Then we have center state coordination. Suppose a road is to be built or a port is to be constructed or a railway track has to be laid out, right? Or a well has to be dug. So always center state hassles are there, permissions are there, right? Then probably you can write number fourth is judicial delays. So anything you want to get done in our country, the opposing party will file a case against you that will lead to additional costs, right? Sometimes the projects get stuck for 10 years, especially the PPP model ones, right? So that is an issue. Then you can write ease of governance. So sometimes the ease of governance is not there, especially in states which have not initiated the reforms, right? So I'll repeat. Under governance, you can write tax-related issues. Then red tapeism is always there. The center state issues, judicial delays, ease of governance, and others. Now, what all things come in the other parts? Others, right? So this aspect is almost missed by everyone, right? Now, what are the issues? Others में आ जाएगा आपके. Number one, weaponization. Please write it down. So these are some important keywords. So weaponization of trade flows. What comes under weaponization of trade flows? Probably, say, China is levying some hurdles, or there was an issue related to Huawei, that mobile company, that further escalated into other departments between US and China, right? Then we have wars. So Israel war is there, and Russia-Ukraine war is there. Some called it incursion and all, but it's safe to assume that it's a war, right? This is majorly now. Third one is technological disruptions. Sometimes, say, for instance, we are talking about MSME. Now, just imagine the scenario. There is an MSME that is working for textile sector or some value addition of some food products, right? And in our country, most of the work is done in a non-mechanized way, right? Now, there is a technology disruption, say in USA or in China, where they have created a machine which would automatically bring down the cost as well as it will increase the speed of production. So that is a technological disruption, right? So technological disruption also is there. Then, and you can write the slowdown induced by health hazard like COVID, right? Then very specific point that is almost that can be utilized in across the almost all the papers except ethics is you can write this book by Chip Wars.
I don't want to tell you the entire name because it's a long name, but Chip was by Chris Miller, right? So this guy has written how the semiconductor industry has transformed the relations and how the future escalations or future geostrategic conflicts can be initiated by or will be initiated by the semiconductor chips. So, you must have heard that after, how many of you remember? I don't know, but during COVID or post COVID, the automobile sector was undergoing a slump. The reason was the issue of chips, right? Rare earth minerals, etc. So, all these things can be written by you. All right. Now, let's try to apply this along various themes. Let's say what are the issues faced in agriculture? Why the agriculture sector, despite the government taking steps, it's not growing? First of all, I would like to ask anyone having any doubt, you want me to repeat a point or you're not following, let me know. I have kept my phone on, do not disturb. So some of you who are messaging me here, I'm not able to get your notifications for obvious reasons. So anyone who wants to ask something, you may raise your hand. You want to say something. Otherwise, it's like talking to a wall, right? So it's better if you have something to say. If you're able to hear me, Avinash, Saurabh, Rajveer, Shivani, Aman, right? Avinash wants to speak something finally. Yes. Sir, Yes. can you explain again the trade barriers, told weaponization of trade barriers by China? Yes. 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 So what happens is they levy extra costs. Suppose they want to restrict the imports from USA, they would levy some trade barriers. They would increase the taxes from the foreign goods on the foreign goods, right? And that would be reciprocated by USA and other trade blocs. Again, this can be better understood in the form of these the free trade agreements, right? FTAs. Uh, India is not a part of it. Wow. Do you know which FTA I'm talking about? Yes, Rajveer wants to speak something. RCEP? Very good, right? So RCP is there primarily because the milk producers in our country went against it. So yeah. So these are the things. Weaponization of trade flows. Right. सर माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सर मनी लॉन्ड्रिंग सर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ इशू है सर उसमें तो उसको कहाँ यूज कर सकते हैं सर मतलब So money laundering का issue in what sense you're saying? सर इकोनॉमी के अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का रिलेटेड कोई पॉइंट होता है सर जैसे वो गवर्नेंस से भी लिंक्ड है सर उसको अदर वेपनाइजेशन से भी लिंक्ड हो सकता है सर कोई टॉपिक ऐसे You can fit it in forex now. Manipulation of forex, right? We have discussed the economic part now. But see, money laundering directly cannot be written. You have to write it as an example. Right? It's too specific of a point. ठीक है? वो डबल स्ट्रिपिंग वाला पॉइंट होता है सर कि मतलब वो मतलब जहां पर डबल टैक्स ना देने पड़े वहां से वापस वो इन्वेस्ट कर दे सर वो डबल स्ट्रिपिंग वाला पॉइंट सर वो मतलब तो टैक्स रिफॉर्म्स में आ जाएगा वो टैक्स रिफॉर्म्स में आ जाएगा कि डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटीज जो हैं हमारी व्हिच आर बीइंग यूज्ड और मिसयूज्ड रादर ठीक है ठीक है नाउ टू फर्दर एनरिच योर आंसर्स आई हैव रिटन सम good points. Please note it down. And if you're not able to understand, just do a just quick Google search and you'll find your answers there. Number one is the auction theory by Paul Milgrom. I think he's a Nobel laureate, right? So auction theory by Paul Milgrom, where you can use this in designing better contracts, better liquidation of stressed assets, etc. Right? Just write fast because we have to cover it in shorter duration. Number two is RCT approach of Esther Duflo. So again, Abhijit Banerjee, right? RCT क्या होता है? Root canal treatment नहीं होता है. क्या होता है? Randomized control trials. ठीक है? Okay. Next is capability approach of Amartya Sen. Our Honorable Prime Minister also said something on this line. That development as justice, right? You can quote him also. There's nothing wrong in it, right? You're quoting
the highest boss in our country, executive boss, right? Don't quote his name, just quote the Honorable Prime Minister, right? Then Agripreneurs by Ashok Gulati. So there are thousands of economists. More recognized ones are Mr. Ashok Gulati and all, who regularly write on agriculture sector. Sir, could you please repeat, sir, PM's point, sir? मतलब PM point he just mentioned in one of his speech was development as justice, right? So what initially what was the theory that justice was about acquisition of resources, more and more resources. Then Amartya Sen came up with like capability as justice. One has to have the capability, and then our honorable prime minister says that one has to have the like development should be there. It's a form of justice, right? So if you quote official these keywords, they will help you. For instance, this there was again this on cooperatives. सहकार से समृद्धि, है ना? You can quote this. एग्रीकल्चर के लिए है अन्नदाता से ऊर्जादाता, राइट? हाउ ऊर्जादाता? बायोगैस है, सोलर एनर्जी है being produced on farms, even windmills are being installed there. Then write one very important thing. India grows at night. So this is a book written by Mr. Guru Charan Das. He says that red tapeism is not allowing India to grow. Why India grows at night? Because then the governance structure, what he means to say is that the real India grows at night when the government is sleeping, right? That is a good point of red tapeism. ठीक है? So Can we use NGOs examples? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? सो मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको बाहर, और आप कितना भी पढ़ लो, विजन पढ़ लो, ये पढ़ लो, काम नहीं आएगा, यही काम आएगा, क्योंकि पेपर इसी से निकलेगा आपका। 100 पेजेस का आप पढ़ लो, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। 100 पेजेस के आप पढ़ लीजिए इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी यही बात होगी जो हम बात यहाँ कर रहे हैं, राइट? तो नॉलेज अपनी रखिए, बट स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। नॉलेज से पेपर क्लियर नहीं होता है, आपके स्ट्रक्चर्स या एक स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, वो इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन कह रहा था? भैया गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, हाँ बताइए। भैया मैं ये कह रहा था कि गूगल मीट पे शिफ्ट हो सकते हैं क्या? वहाँ पे पहले भी हमने सेशन लिए हैं, वो ज्यादा थोड़ा कन्वीनियंट था, टाइप वाइप भी कर लेते थे। हाँ मुझे भी लग रहा है, मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशन वहीं से लूंगा, है ना? इसमें देखते हैं यार, उसमें रिकॉर्ड शेयरिंग का थोड़ा सा इसमें इशू हो जाता था, इसमें डायरेक्टली रिकॉर्डिंग होती रहती है साथ में। विल ट्राई टू सी, है ना? विल सी समथिंग, ठीक है? सो लेट्स, अभी समझ में आया सबको इकोनॉमी का करना क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेसिफिक आंसर्स आप लिख पाओगे बहुत ज्यादा, पर इसमें पॉइंट जनरेट बहुत अच्छे कर पाओगे आप, है ना? अब जैसे इकोनॉमी के हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, पर उसको हम यूज क्यों नहीं करते हैं? लैंड है, लेबर है ना, कैपिटल है, ऑल दीज थिंग्स। अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो लैंड का इशू है ना, एक तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रहा है, ठीक है? दूसरी चीज है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लैंड रिफॉर्म्स का इशू है। फिर आप लेबर पे आ जाइए, तो आपका लेबर की बात कर सकते हैं कि लेबर की स्किल्स डेवलप नहीं है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है इंडियन लेबर्स की, राइट? शॉर्टेज ऑफ लेबर्स है। कैपिटल की बात आ जाएगी तो एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, क्योंकि थिन फाइल क्लाइंट्स होते हैं फार्मर्स, क्रेडिट हिस्ट्री उनकी पुअर होती है, समटाइम्स दे मे हैव टू गो फॉर दीज बेल आउट्स, ऑब्वियसली स्टेट की उस पर। सर हम लोग पॉवर्टी ये लाइक लोन माफी कर देते हैं, उसको भी एग्जांपल में यूज कर वही, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द पॉइंट शुड मेक सम सेंस, ठीक है? अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि पॉवर्टी का क्या इशू है, पॉवर्टी के यही इश्यूज हैं यार, आप अलग से क्यों पढ़ोगे पॉवर्टी, है ना? पॉवर्टी का सबसे पहले गवर्नेंस के बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि लास्ट माइल रीच नहीं है गवर्नेंस की, रेड टेपिज्म है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स इज मिसिंग,
राइट। इन्वेस्टमेंट नहीं है, खासतौर से पुराने सॉरी आपके जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, इंडस्ट्रीज आर नॉट इन्वेस्टिंग, एंड ऑल दीज आर इकोनॉमिक पॉइंट्स। तो एग्जामिनर को लगना चाहिए दैट यू आर नॉट राइटिंग अ सोशियोलॉजी आंसर, अदर यू आर राइटिंग अ GS3 आंसर। बैंकिंग का इशू हो सकता है, राइट। फिर आप केपेबिलिटी अप्रोच, सो दीज आर द फॉर्डर पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। आ जाइए इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक एंड चीज पूछना थी सर, बताइए। ये सर खुद से सर ये थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ सर? ये खुद से ये पॉइंट्स निकल कर आ ही नहीं पाते सर, जो आप पॉइंट्स बता रहे हैं, मतलब ये मतलब। यार मेरे को 6 महीने लग गए राजवीर, आप, मैं चाहता हूँ आप ना दो इतने, उसके बाद हो जाएगा आपका भी, आई होप ना हो किसी का, है ना। सर मतलब वो खुद से बहुत जनरलाइज पॉइंट्स आते हैं सर, मतलब हम्म, वो इतना डिटेल में हम्म, सर इतने अच्छे पॉइंट्स निकल कर आ ही नहीं हम्म, पाते सर, मतलब वो। आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और ठीक है, आ जाइए, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने इकोनॉमी का मेजर पोर्शन कवर कर लिया 20 मिनट्स में। आई वॉन्ट यू टू राइट गुड आंसर्स, आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, नॉलेज किसी काम की नहीं है, पेपर के बाद आप नॉलेज काम नहीं आएगी इतनी, ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट आना चाहिए लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एनवायरमेंट इकोलॉजी पे, तो बहुत सिंपल है, आई टेक 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस, ठीक है, फिर यू प्रॉब्ली यू कैन स्टडी वट एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है। किसी भी एनवायरमेंट के क्वेश्चन के लिए आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, देखिए फैक्ट्स, नंबर इंट्रोडक्शन फैक्ट से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फैक्ट कुछ भी कोट करिए, UNEP लिख दीजिए आगे, UNEP अथॉरिटेटिव है, ये कोई भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई हो, या मन से बना दीजिए, नीति जैसे नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट वाला इंडेक्स है, दैट ये दिस इज नॉट कुक्ड अप बट दिस इज एन एक्चुअल फैक्ट, ठीक है। अभी वैल्यूएशन बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, उसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए पॉइंट्स क्या है, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी पे एक ही चीज आती है भाई, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, या मैंग्रोव्स खत्म हो रहे हैं, उससे क्या आएगा, है ना, रीजंस पूछ लेते हैं, तो ये लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट वेरी कॉमन थीम विच इज क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट आ जाएगा भाई। तो क्लाइमेट चेंज से क्या इम्पैक्ट आएगा, C फॉर साइक्लोन, है ना। देन अनदर C फॉर क्रायोस्फेयर, अभी लिखते जाइए, समझ नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ लिखना है, रट्टा मारना है, जैसे हम बच्चे बचपन में मारते थे ना, बिना समझे, और पेपर रटने का ही है ये, सॉरी टू से, कुछ ज्यादा समझना नहीं है इसमें पेपर में। फिर तीसरा है T, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और जल्दी लिखने की आदत सबको होगी, मैं थोड़ा जल्दी जा भी रहा हूं तो थोड़ा इंप्रूव करिए। चौथा है ड्रॉट्स, सूखा पड़ना। पांचवा है रेनफॉल, तो रेनफॉल कहीं बढ़ रही है कहीं कम हो रही है, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, फिर उसके बाद लिख ली ओजोन लॉस, फिर सेलिनाइजेशन, मतलब डिजोल्व सॉल्ट बढ़ रहा है वाटर में, विच रेंडर्स इट अनयूजेबल। उसके बाद है, नेक्स्ट है सी लेवल राइज, फिर से बता रहा हूं, इसका शॉर्ट फॉर्म है CCT-DRS, CCT-DRS, C फॉर साइक्लोन, C फॉर क्रायोस्फेयर, T फॉर टेम्परेचर, D फॉर ड्रॉट्स, R फॉर रेनफॉल, ठीक है। फिर सेलेनाइजेशन, बायोडाइवर्सिटी, ओजोन, सी लेवल राइज, बॉस आखिर में BOSS भी ऐड कर सकते हो, बट इतने से चल जाता है। एनीवन हु हैज मिस्ड आउट ऑन समथिंग? और एक रिक्वेस्ट है मेरी विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सजेशन, अगली बार ज्वाइन करेंगे, सबने ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन किया अपने असली नाम से, 2-3 लोग हैं जो अपने असली नाम से ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनके क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो थोड़ा फॉर्मल रहना पड़ेगा क्लास में, ठीक है। एक आध बार ट्रोल अकाउंट आ गए थे, तो वो सही नहीं लगता यार, आई एम गिविंग यू माई टाइम, प्लीज रिस्पेक्ट दैट।
अच्छा, इस बार एक क्वेश्चन आया आप लोगों का, कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, डैम फेलियर पे आया था, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन आया है आपका, व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द मरीन इकोसिस्टम, वील सी, बहुत सिंपल है ये। इन व्हाट वेज इज ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। चलो, तो एक बार मैं फिर से डिस्कस करूंगा क्या क्या बातें हमने की हैं अभी तक। अच्छा, पहले फैक्ट बता दिया, पॉइंट बता दिए, मेन बॉडी, उसके बाद एंडिंग करनी है। तो कुछ कुछ स्कॉलर्स के नाम है, वंदना शिव है जैसे, सो शी इज अ फेमिनिस्ट इकोलॉजिस्ट, ठीक है। डाउन टू अर्थ, अगेन मैगजीन, आप यू कैन कोट एज मच एज यू लाइक। सर कुड यू फिर प्लीज आई, टेल द फुल नेम? वंदना, वंदना वंदना शिव, ठीक है। डाउन टू अर्थ मैगजीन है। फिर आईपीसीसी AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6 है। अच्छा, मैंने जितने ब्यूरोक्रेट से बात की है, लाइफ मूवमेंट बहुत ज्यादा दे आर डिस्कसिंग, सो दे, द यूपीएससी वांट्स यू टू राइट अबाउट लाइफ, है ना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इट्स अ ग्लोबल मूवमेंट लेड बाय इंडिया। लाइफ मूवमेंट कैन ऑल्सो बी आज इन प्रीलिम्स दिस ईयर। तो लाइफ मूवमेंट के आपको गोल्स पता होने चाहिए, उसके स्पेसिफिक गोल्स हैं, मेंशन्ड है, वेबसाइट पे जाइए और देखिए, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बता दिया मैंने। फिर पंचामृत प्रिंसिपल्स हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। और कुछ कुछ बुक्स आपको जो पढ़ते हो आप, स्मॉल इज ब्यूटीफुल आई थिंक इज वन ऑफ देम, राइट। इससे आंसर एनरिच हो जाएगा आपका, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है एनवायरमेंट में। अभी हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, थोड़ा सर, ब्रेनस्टॉर्म एसडीजी, थोड़ी देर कर, एसडीजीज को भी कोड कर सकते हैं ना सर? एसडीजी एसडीजीज कर सकते हैं, एसडीजी ऑलमोस्ट एवरीवन इज कोटिंग, आपने देखा होगा, एसडीजी भी कोड कर सकते हैं, कुछ नहीं याद आ रहा तो एसडीजी लास्ट में कोड कर दीजिए, क्लीशे हो गया एसडीजी, है ना थोड़ा। देखिए, लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 15 मिनट का बोला था, 10 मिनट ही में हो गया अपना काम, तो हम देखते हैं क्या क्या कैसे यूज करना है एनवायरमेंट वाला, ठीक है। 18th क्वेश्चन डायरेक्टली इस बार का है, द आईपीसीसी हैज प्रेडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल राइज अबाउट 1 मीटर, व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट अदर कंट्रीज, तो हम डिस्कस कर चुके हैं ये। पर जब भी कुछ भी डिस्कस, किसी भी चीज के बारे में पूछा जाए ना कि डिस्कस इज इम्पैक्ट, इट्स बेटर टू राइट इट इन बाय कैटेगराइजिंग देम। अब पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं यार, सोशल इम्पैक्ट होगा, इन्वायरमेंटल होगा, इकोनॉमिक होगा, और सिक्योरिटी रिलेटेड इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन ऑन अ कंट्री, तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लिख दीजिएगा, जो जो हमने अभी डिस्कस किया है वो आप आराम से लिख लोगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है, सी लेवल राइज का क्या होगा, मैंग्रोव्स होंगे, कोरल रीफ बीचिंग हो जाएगी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, राइट, मोर एंड वी विल बी मोर ससेप्टेबल टू साइक्लोन्स एंड ऑल। फिर आ जाएगी इकोनॉमिक पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट कुछ नहीं होते हैं, पोर्ट का इशू हो सकता है ना, जो पोर्ट लेट डेवलपमेंट हमारे जो सागर माला है दैट कैन गेट थ्रेटेंड, जो लाइवलीहुड कंसर्न है, तो मरीन फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स एक्सेट्रा, उनका हो जाएगा, राइट। राइस फार्मर्स हैं स्पेशली इन केरला, उनका इशू हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सोशल इम्पैक्ट अगेन, किसी भी डिजास्टर में विमेन एंड चिल्ड्रन सफर द मोस्ट, ट्राइबल कम्युनिटी सफर द मोस्ट, राइट। पावर्टी इंक्रीज होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो उनका एकमात्र साधन होता है वो भी खत्म हो जाता है, राइट। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कि जो हमारी जो मरीन बॉर्डर फोर्सेस हैं उन पे रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन का प्रेशर बढ़ेगा, मोर इनकर्जन्स कैन हैपन, है ना, एज सिक्योरिटी, कंट्री सिक्योरिटी टेक अ टोल, फॉर एग्जांपल 26/11 जो हुआ था, ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं। फिर जो इन्वायरमेंट एडवर्सरी माइनिंग नेशंस है, सर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ना, एडवर्सरी स्टेट्स हैं जैसे चाइना है, तो वो सबमरीन इंकर्जन कर ही रहा है इंडियन ओशन में, तो दैट कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। तो इफ यू थिंक अलोंग दीज लाइंस, सोशल इकोनॉमिक, ये कोई करता नहीं है, पता सबको रहता है, पेपर में बहुत गंदा लिख के आते हैं लोग, ठीक है। एक
एक क्वेश्चन और देखते हैं, मरीन इकोसिस्टम बहुत इनका बहुत कॉमन चल रहा है। व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द मरीन इकोसिस्टम? ऑयल पोल्यूशन के कितने सिंपल है पॉइंट्स देखिए, मरीन इकोसिस्टम के पॉइंट्स हैं आपके। सबसे पहले वही, ऑयल पोल्यूशन हो या कोई सा भी पोल्यूशन हो, सबके एक ही इम्पैक्ट होते हैं मरीन इकोसिस्टम पे। नंबर वन, सैलिनाइजेशन इंक्रीज होगा, सेडिमेंट लोड डिफर हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, कोरल रीफ ब्लीचिंग हो जाएगी, मैंग्रोव्स खत्म हो जाएंगे, एवियन फौना जो विच आर फाउंड अक्रॉस जो कि मरीन इकोसिस्टम में, वो उनका पैटर्न चेंज हो जाता है, माइग्रेशन चेंज हो जाता है, राइट। आपका फिर यूट्रोफिकेशन इंक्रीज हो सकता है, राइट। जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स हैं, क्रीक्स हैं, दे गेट डिस्ट्रॉयड। सो राइट दीज वेरी स्पेसिफिक येट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 8-9 पॉइंट लिख दिया, आंसर आपका डेवलप हो जाएगा अपने। वो एग्जाम्पल डालते जाइए जहां जहां आपको याद आए। डायग्राम बना सकते हो, इंडिया की कोस्ट लाइन बना दी। अगर मरीन इकोसिस्टम एज अ होल पूछा है, वर्ल्ड का बना दीजिए। इन व्हाट फेज oil pollution is particularly harmful for a country like India? Again, social, economic, political नहीं, social, economic और security related, ठीक है। efficiency of our ports will decline, सागरमाला स्ट्रेटेजिक में लिख दीजिए कि वही है ना, जो पोर्ट्स की सेफ्टी पे इशू आ जाएगा, डिजास्टर इम्पैक्ट मैनेजमेंट से रिसोर्सेज पे वो होता है, प्रेशर पड़ता है। समझ में आ रहा है सबको? आई थिंक एक लेवल ऑफ क्लैरिटी सबको रीच हो रहा होगा। कहीं भी मैंने कुछ भी विजन आए ऐसा कुछ भी उठाया नहीं है, सिंपल मन से बात हो रही है अभी, ठीक है। कीप योर प्रिपरेशन वेरी सिंपल, ऑर्गेनिकली डन। और जितने टॉपर्स होते हैं वो यही करते हैं, दे कीप थिंग्स सिंपल। अब इसके लिए कोई आपको अलग थोड़ी पढ़ना है, हमने आंसर क्वेश्चंस एनालाइज करे, वहीं के वहीं आंसर कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आर यू ऑल गाइस ओपन फॉर अनदर क्वेश्चन? अदरवाइज आई विल क्लोज द सेशन। 5 लोग हाथ रेस करिए, सो आई डिस्कस, अदरवाइज आई लीव, है ना। अविनाश है ना, हो गए। एनीवेज हो गए सबके, ठीक है। आई गेस ठीक है, इट्स फाइन। क्वेश्चन था इस बार का, एंड सी मैंने अभी याद नहीं है मुझे कुछ भी, बट स्टिल वील ट्राई टू आंसर दिस। Comment on the National Wetland Conservation Program initiated by the Government of India. Name a few India's wetland of international importance included in Ramsar sites. ये क्वेश्चन कब आया है? 2022 में आया, सॉरी 23 में आया इस साल। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, स्पेशली द लास्ट पार्ट इन वेयर 2018 का पेपर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रिपेयर कर लीजिए, नहीं करेंगे तो इट्स योर लॉस। अब देखिए, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम सब पढ़ते हैं, पर किसी को लिखना नहीं आता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कमेंट करना है, इट्स नॉट जस्ट वेली आस्किंग यू द डिटेल्स। तो अगर डिटेल्स भी पूछता है, लेट्स सी डिटेल्स कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम हो कंजर्वेशन का, इट्स इन द नेम, कंजर्व करना है वेटलैंड्स का, ठीक है। नंबर 2, नॉलेज शेयरिंग करेंगे आप सबके साथ। फिर कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल पे। चौथा है कि लोकल बॉडीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। फोर्थ है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी की हेल्प करेंगे। फिर लिख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोकल नॉलेज, लोकल बेस्ट प्रैक्टिसेस, फिर इंक्लूजन ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, राइट। तो ये पॉइंट्स कैसे मैं मन से बना रहा हूँ, बट एब्सोल्युटली these points are going to work। सामने वाले को लगेगा इसको आता है। किसी भी प्रोग्राम का हो, नॉलेज शेयरिंग होती ही होती है, कलेक्शन होते ही होता है, ट्रेनिंग होती है स्टाफ की। लिख दीजिए ट्रेनिंग ऑफ वाटर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबको समझ में आ रहा है? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है पेपर के लिए, इट्स योर स्किल्स दैट विल सेल यू थ्रू, है ना। डोंट फॉल इन द कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप, स्पेशली फॉर मेंस एंड इवन मोर सो फॉर प्रीलिम्स। फिर कमेंट कर देना, तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव कर दीजिए, एग्जांपल डालते जाइए कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो रहा है,
राइट? चिल्का लेक का डाल दीजिए एग्जाम्पल, ठीक है? नहीं भी आ रहा हो तो मन से जो जो लेक्स आप गए हैं सबके एग्जाम्पल लिखते जाइए, किसी को नहीं पता है। हर लेक में कुछ अच्छा काम हुआ होगा, हर लेक का कुछ बुरा काम चल रहा होगा, ठीक है? सॉरी, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है सबको? सर हाँ भैया। हाँ जी, सर ठीक है, बताइए। सर आई हैव अ डाउट लाइक आपने जैसे बताया अभी सैलिनाइजेशन होगा, नॉलेज शेयरिंग होगी, सर इसको सब्सटैंशिएट कैसे करेंगे, मतलब एग्जांपल कैसे देंगे इस पॉइंट के नीचे? जैसे क्या सेलिनाइजेशन हो रहा है ना? तो सेलिनाइजेशन ऑफ लेक ऐसी में उदयपुर लेक, बस। डेटा किसी को थोड़ी पता होगा यार कितना इंक्रीज हो गया सेलिनाइजेशन, है ना? ओके हम्म। ये तो क्लियर है। हाँ समीक्षा बताओ। सर मुझे पूछना था, इकोनॉमी में आपने एक आरसीटी अप्रोच बताई थी, तो वो क्या है एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया। कौन सी अप्रोच? आरसीटी अप्रोच। हाँ, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। ये कुछ सिंपल सा है, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला इनको इकोनॉमिक्स के लिए, एस्थर डफ्लो और उनके पार्टनर अभिजीत बनर्जी को, कि किसी भी जो भी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको एज अ होल नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिसिटीज में जाना है और लोकल लेवल पे डेटा गैदर करके समझना है कि किस पॉइंट पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू डिस्ट्रिक्ट, सपोज भागलपुर एक हो गया, एक भोपाल हो गया। अब पॉवर्टी के जो इश्यूज हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ लाएगी स्कीम, मान लीजिए दोनों में काफी हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर टॉप डाउन वर्क करेगी तो कर देंगे कि एक्सेस टू क्रेडिट इशू हो सकता है, राइट? अगर वो एक्सेस टू क्रेडिट इशू करेंगे और दोनों में क्रेडिट देना शुरू कर देंगे, चांसेस आर कि एक भागलपुर में वर्क कर जाए, भोपाल में वर्क ना करे। तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? आरसीटी कराइए, पता चलेगा कॉज ऑफ पॉवर्टी इंडिया भोपाल में क्या हो सकता है। भोपाल में ये हो कि कुछ हेल्थ हजार्ड हो रहा है जिसके कारण पॉवर्टी इंड्यूस हो रही है, तो it makes more sense to invest in health related infrastructure in Bhopal, and if credit is an issue in Bhagalpur, invest there. So this is randomized control trial. Trials के basis पे छोटे छोटे parts में understand the issues and then policy should be framed according to that. ओके सर। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी, ग्राफ्स कैसे इंक्लूड करें हम इकोनॉमी वाले पोर्शन में, मतलब किस टाइप के कर्व्स वगैरह या फिर डेटा के साथ लाफर कर्व कर लीजिए। कर्व्स ही लाफर कर्व क्या होता है? करवाएं। हाँ, तो जैसे कि टैक्सेशन का इशू है, ठीक है? अब टैक्सेशन में जीएसटी आपको पूछेंगे, जीएसटी में कौन सा बना सकते हो आप? लाफर कर्व बन जाता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक टैक्स इंक्रीज होगा, फिर रिड्यूस हो जाएगा। पॉवर्टी की बात करें तो लॉरेंस कर्व आ सकता है ना? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का बताना है तो आप फिलिप्स कर्व दिखा सकते हैं, है ना? ऑल दीज थिंग्स। ज्यादा ग्राफ नहीं है, दो तीन तीन बना लीजिए, उस पर काम हो जाता है ना? छोटा सा बनाना सीख लीजिए। ओके सर, थैंक यू। हम्म, ठीक है गाइस, सो आई एंड द सेशन एंड आई होप थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला हुआ सबको। हाँ भैया, एक थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना था। भैया अभी पूछो पूछो। अप्रोच के रिगार्डिंग पूछना था। अभी मोहित भैया वाले वो भी हैं अपने पास, जो है मेंस वाले नोट्स। सो अभी करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस ना करके क्या वो उनका बार बार मतलब रिवाइज करना ज्यादा बेटर रहेगा? बिल्कुल, करंट अफेयर्स के नोट्स जरूर, करंट अफेयर जरूरी नहीं है इतना, है ना? एज यू कैन सी, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे लेट्स डू प्रैक्टिकल डेमो। मैं विजन आईएएस का करंट अफेयर्स खोलता हूँ, ठीक है? मंथली खोल के देखते हैं, और सितंबर तक आ गया ना, खुल रहा है। कुछ इन्होंने वेबसाइट चेंज कर दी है इस बार, चलो खुल रहा है। हम्म, वैसे ये तो भैया जैसे आपने प्री में पिछली बार ही बताया, तो हमने देखा था कि पिछले पीवाईक्यू ज्यादा रिपीट हो रहे हैं करंट अफेयर से रिपीट ज्यादा, होता है। वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो बता रहा हूँ।
स्क्रीन किस किसको दिख रही है मेरी बताना, दिख रही है ना? विजन आइज दिख रहा है सबको? ठीक है, अभी अभी नहीं भैया, अभी लोड हो रहा है। दिख रहा होगा सबको, इट्स विजिबल। है ना? विजिबल है। अब देखो कितने पन्ने का है इनका, देखते हैं। ऑलमोस्ट सबसे पहले मैं पेजेस काउंट करता था, 120 पन्ने का यार। ठीक है, इतनी बुक्स होती हैं। अब आप देखो इन्होंने इकोनॉमी, हम पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। जीडीपी एस्टिमेशन इंडिया, इट्स अ स्टैटिक पोर्शन का टॉपिक। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेशन, क्रिप्टो असेट्स, डिजिटल इंक्लूजन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फालतू के टॉपिक्स हैं ये। आप बताइए। अच्छा, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, पूछ सकते हैं, पर ये क्या इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है ना यार। ठीक है, जस्ट लुक एट द की पॉइंट्स। ये प्रॉब्ली किसी को याद नहीं रहेंगे, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के पॉइंट्स। इन्होंने सॉरी चैलेंजेस जो भैया, बताए थोड़ी आवाज उससे कट अच्छे, रही है आपकी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो चैलेंजेस इन्होंने बताए इनसे अच्छे चैलेंजेस हम लिख लेंगे, वे फॉरवर्ड इनसे बेटर हम लिख लेंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इन्होंने प्रोग्रेस पूछा है, डिजिटलाइजेशन ऑल। अब देखो ना कितने वीक पॉइंट्स हैं, इससे बेटर तो हम लिख सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं कि यार इन्होंने बोला क्या है, इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स है, ये सब है। प्रॉब्ली दिस मे कम इन हैंडी, बट नॉट टू राइट अ वेरी गुड आंसर। तो ये रैंडम पॉइंट्स रहते हैं। ये देखिए, आपको मैं जैसे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, अभी कुछ स्टैंडिंग कमेटी यार हजारों बार बनती है। मैं ऑडिबल हूँ? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। यस सर, यू आर ठीक है, ऑडिबल। दिस इज, हाँ। तो स्टैंडिंग कमेटी है और उसने कुछ रिपोर्ट सबमिट की है, फलाना ढिमका, विच विल नेवर बी आस्क्ड इन यूपीएससी, नेवर। ठीक है, तो अब भाई व्हेन इट्स नॉट आस्क्ड, इट्स व्हेन इट विल नॉट बी आस्क्ड, इन्होंने क्या करा है, इंपॉर्टेंस बता दी है। अब ये इंपॉर्टेंस जो बताई यार, वो तो एनवायरमेंट, वो तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की है इंपॉर्टेंस। बार बार क्यों पढ़ेंगे हम अलग से? एक फैक्ट देख लो, और ये प्रीलिम्स का स्पेसिफिक फैक्ट इन्होंने कोने में दिया है। जैसे ये वाला फैक्ट है ना आपका, ये वाला, ये ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इन्होंने फालतू का फैक्ट बना दिया, कॉमिक्स जैसी बना दी है। तो यार इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। प्रॉब्ली स्टेप्स टेकन लिख सकते हो एक पेज पे, इतना एक्सट्रैक्ट कर लो। पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, तो अभी ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो दिस इज इंपॉर्टेंट, बट नॉट फॉर योर मेन स्पेसिफिक कंटेंट। अब फोर्थ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस कभी नहीं पूछेगा, ऑफ बजट बोरोइंग्स है। यू गेटिंग इट? ये फालतू की बातें हैं और कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी फालतू नहीं बैठा ना, सॉरी टू से, मतलब वो क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं पूछेगा इतने। फालतू हम लोग बैठे रहते हैं करंट अफेयर्स के लिए। अब देखिए, मैंने कल्चर भी डाल दिया इन्होंने। कल्चर से आए हैं क्या यहाँ से क्वेश्चन? आज तक नहीं आए। फोटो डाल देते हैं टॉपर्स की, तो एक वो हो जाता है कि यार अच्छा इन्होंने पढ़ा होगा इसलिए हमें इससे पढ़ना है। नथिंग मोर देन दैट। इवन साइंस एंड टेक की भी चीजें बहुत बहुत ज्यादा ओवर है। ठीक है, ठीक है भैया। है ना? नमामि गंगे, अब नमामि गंगे कितने साल से चल रहा है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रोजेक्शंस, कभी नहीं बोलेगा, लेटेस्ट प्रोजेक्शन कभी नहीं पूछेगा वो। ये देख सकते हो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एंड मूव अहेड, स्किप दिस, वे फॉरवर्ड एंड ऑल, ये मन से बना देंगे अपने। आईपीबी आईपीबीईएस असेसमेंट रिपोर्ट, फालतू की बात है एलियन स्पीशीज पे। ठीक है, सो यू गेट माई पॉइंट कि नहीं करना है, इतनी पढ़ाई नहीं करनी है। ऑप्शनल फोकस करो और थोड़ा घूम घूम के आ जाओ, अभी समय है थोड़ा आसपास, रिलैक्स करो एंड कीप स्टडिंग। 5 से 6 घंटे पढ़ो, पर स्मार्ट तरह से पढ़ो। ठीक है, चलो सारी बी एंडिंग द सेशन नाउ। So last one. बताओ बताओ बताओ। Sir, then what should be the strategy for current affairs? Like how to approach them? अगर कोई free कोई भी करना मंथ, चाहे तो हाँ तो कोई भी मंथली मैगजीन उठा लो, जैसे अभी हमने उठाई है। आइडेंटिफाई द टॉपिक्स दैट विल बी आस्क्ड फॉर श्योर, एंड लीव द टॉपिक्स व्हिच हैव नेवर बीन आस्क्ड। ये रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं है, ये इंटेलिजेंट अप्रोच है ना? अभी इन्होंने 120 पन्ने दिए, 120 पन्ने आप
6 मंथ का पढ़ोगे 720 हो जाएगा, 10 महीने पढ़ोगे तो 1200 पन्ने हो जाएंगे। तो लास्ट सर टाइम में भैया कंसोलिडेट नहीं हो पाता नहीं इतना हो भी पाते हैं, प्रॉब्लम और वो होती है। पूछेगा भी नहीं, और दिमाग उतना ही है जितना सबके पास होता है ना। गार्बेज हम नहीं डाल सकते दिमाग में, ये मतलब चैट जीपीटी थोड़ी दे रहा है पेपर यार, हम दे रहे हैं, नॉर्मल लोग दे रहे हैं, तो इतना नहीं कैन वी पढ़ना है। फॉलो द स्ट्रेटेजी can we follow the वरुण, strategy where like we can complete, for example, I have completed the polity subject and I'm referring to the mains 360 of Vision IS. बिल्कुल कर सकते हो। वो भी कोर थीम देखो वरुण, लाइक मेंस Yes, sir. 365 में भी कोर थीम्स जरूरी हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें देता है, जैसे डिजिटलाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक थीम थी, वो नहीं पूछेगा यार, पूछेगा भी तो वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में पूछेगा। Yes. अभी जैसे उन्होंने पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इलेक्शंस, तुम्हें लगता है ये पूछेंगे कभी पेपर? No. ये GS3 में पूछ सकते हैं कि रिस्क ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि प्राइमरीली ऑफ द डीप फेक इशू दैट इज रनिंग। उसका आंसर डाल दिया है, इंस्टाग्राम पे देखिएगा, बहुत अच्छा आंसर डाला है, आज या कल में डाला है वो, गो थ्रू कर लो, 5-6 पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लो, खत्म। साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है ना। Sir, ये we can also look at बताओ। PYQs and then refer the current affairs because PYQ ऑल्सो also नहीं, gives इट us हैज टू idea. बी डन, एब्सोल्युटली वही करना Yes, sir. है। हाँ मतलब वो तो है, वो तो गिवन है ही, पीवाईक्यू इज द ओनली थिंग दैट वी कैन ट्रस्ट। ठीक है, Yes, sir. ऑल Thank you, राइट, sir. चलो, थैंक यू एवरीवन, आई विल कॉल द सेशन ऑफ नाउ। Thank you, sir. ऑल राइट।